افواج اور عوام میں تفرقہ پیدا کرنے کی کسی کو ہرگز اجازت نہیں۔ دہشت گردی، جرائم اور سیاسی مفادات کے درمیان گٹھ جوڑ یکسر مسترد۔ قومی یکجہتی، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی، چاہے وہ عناصر سیاسی ہو یا کوئی بھی۔ بھارتی سرپرستی میں تمام دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور معاونین کے ساتھ فیصلہ کن اور بغیر کسی رعایت کے نمٹا جائے گا۔ چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس فورم کا اندرونی و بیرونی سلامتی کی صورتحال کا جامع جائزہ۔ ملک کو درپیش خطرات اور آپریشنل تیاریوں پر زور۔ ملک بھر میں انٹیلیجنس پر مبنی انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں افواج پاکستان کی پرعزم کاوشوں کو سراہا۔ شرکا کانفرنس کا پائیدار امن اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے قومی ایکشن پلان کے مطابق دیگر علاقوں میں بھی اسی طرز کے عوامی اقدامات کی ضرورت پر زور۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے کمانڈرز کو آپریشنل تیاری اور پیشہ ورانہ مہارت کے اعلیٰ ترین معیار کو برقرار رکھنے کی ہدایت کی۔ فیلڈ مارشل کا پاک فوج کی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا مستقل تحفظ کرنے کی صلاحیت پر اعتماد کا اظہار۔ سید عاصم منیر نے کہا، حکومت اور پاک فوج کی مشترکہ کوششوں اور پاکستانی عوام کی ثابت قدم حمایت کے باعث ہمارا ملک بتدریج مگر یقینی طور پر استحکام، وسیع تر مواقع اور عزت و وقار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ فورم نے بلوچستان حکومت کے خصوصی ترقیاتی اقدامات کو سراہا۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے اصولی موقف کی بھی توثیق۔ شرکا کا غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی، بلا روک ٹوک، انسانی رسائی اور فلسطینی ریاست کے لیے قابل اعتماد راستے کا مطالبہ۔ فورم نے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت اور ان کی جائز جدوجہد کے لیے پاکستان کی ثابت قدمی کا اعادہ کیا۔ فورم کا دہشت گردی واقعات میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں اور دہشت گردی کے فروغ کے خلاف مادر وطن کا دفاع کرنے والوں کو خراج عقیدت۔ مسلح افواج کی غیر متزلزل جرأت، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش۔ افواج پاکستان نے ہندوستان کو وہ سبق سکھایا کہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ مودی نے تو کشمیر کے اندر ظلم کے پہاڑ ڈھائے اور کس طرح کشمیریوں کے اوپر بربریت اور ظلم کی داستان آپ جب پڑھتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ آج بھی کشمیر کی وادی میں ان بے گناہوں کا خون بہہ رہا ہے، ان کی خون سے کشمیر کی وادی سرخ ہو چکی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن آئے گا جب آپ کی محنت اور عظمت سے کشمیر بنے گا پاکستان اور مقبوضہ کشمیر ضرور آزاد ہوگا۔ پاک بھارت جنگ میں دشمن کو سبق سکھایا بھارت، افواج پاکستان کا سکھایا سبق ہمیشہ یاد رکھے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے، مقبوضہ کشمیر کی وادی بے گناہوں کے خون سے سرخ ہو چکی ہے۔ نریندر مودی نے کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے۔ ظلم و بربریت کی داستان پڑھتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ پاکستان کی ترقی، خوشحالی کے لیے کشمیریوں نے قربانیاں دی۔ وہ دن جلد آئے گا جب آپ کی محنت سے مقبوضہ کشمیر ضرور آزاد ہوگا۔ شہباز شریف کا مظفر آباد میں طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا لیپ ٹاپ اسکیم کو رشوت ہونے کا تانا دیا گیا۔ لیپ ٹاپ رشوت ہوتی تو کیا آج نوجوان ڈاکٹر انجینئرز بن سکتے تھے؟ ہمیشہ میرٹ کو ترجیح دی، ایک بھی لیپ ٹاپ سفارش پر نہیں دیا گیا۔ آزاد کشمیر میں 4 دانش اسکولوں کی تعمیر کی منظوری دی ہے، جلد یہاں دانش یونیورسٹی بھی بنائیں گے۔ تقریب میں آزاد کشمیر پولیس کے چاقو چوبند دستے کا طلباء طالبات کو گارڈ آف آنر پیش۔ تحریک انصاف نے وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش ٹھکرا دی۔ پی ٹی آئی ترجمان شیخ وقاص اکرم نے اپنے بیان میں کہا، معافی کا مطالبہ سیاسی گھبراہٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ حکومت سنجیدہ ہے تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت سے بات کرے۔ بانی پی ٹی آئی نے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو مذاکرات کا اختیار دیا ہے۔ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کو مذاکرات کے لیے پیرول پر رہا کرنے کا مطالبہ۔ فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ شاہ محمود قریشی یا یاسمین راشد، سرفراز شیما، محمود الرشید اور اعجاز چودھری کی رہائی کی درخواست۔ دنیا نیوز کے پروگرام نقطہ نظر میں فواد چودھری نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، دیکھتے ہیں وزیر اعظم ہمارے خط کا جواب دیتے ہیں یا نہیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی پیرول پر رہائی سے مذاکرات کا ماحول بنے گا۔ حکومت سمجھتی ہے ہمارے نقطہ نظر میں وزن ہے۔
वज़ीर दिफा मुज़ाकरात मुस्बत और नतीजा खेज होने की ख्वाहिशमंद। ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान, कहा बानी पीटीआई के सियासी डीएनए में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। बानी पीटीआई ने सारी जिंदगी जाती मुफाद पर अव्वल व आखिर फोकस किया। मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर किए जाते हैं। बानी पीटीआई असूल परस्त नहीं, 200% मुफाद परस्त शख्स हैं। ये सिर्फ जाती मुफाद बारे सोचते हैं। बानी पीटीआई जाती फायदे के लिए असूल और इंसानी रिश्ते सब रोंद सकते हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा बानी पीटीआई मुज़ाकरात नहीं, अफरा तफरी चाहते हैं। मुज़ाकरात की दावत पर बानी पीटीआई ने मस्बत जवाब नहीं दिया। बानी पीटीआई सियासत नहीं कर रहे, मुज़ाकरात उनकी पॉलिसी में नहीं। बानी पीटीआई के सिवा उनकी जमात में किसी और के पास इख्तियारात नहीं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई पर काबीना की ज़ेली कमेटी की सिफारिशात पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने जामे कौमी एनर्जी प्लान की तश्कील पर मुतल्लिका वजारतों और सूबों की मुशावरत से काम करने की उसूली मंजूरी दे दी। जामे कौमी एनर्जी प्लान के लिए अलहदा सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा। वीकिंग चार्जेस की नीलामी के लिए फ्रेमवर्क गाइडलाइंस की उसूली मंजूरी भी दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कौमी एनर्जी प्लान की मुजव्वज़ा पॉलिसी में तमाम मुतल्लिका वजारतें और सूबाई हुकूमतें बाहमी हम आहंगी के साथ काबिल अमल जामे हिकमत अमली पेश करें। कौमी एनर्जी प्लान की तश्कील में सनतों के लिए कम से कम लागत पर बिजली की फराहमी और घरेलू सार्फिन के लिए सहूलत हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बिजली के ज़ैली तरसीली इदारे डेस्कॉस की निजकारी को मौसर अंदाज और जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। सनती पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के लिए सनतों को बिजली मसाबकती टैरिफ पर फराहम किया जाए। बिजली के तरसीली निज़ाम में हालिया इस्लाहात के बाद बेहतरी आई है। काबीना की तवानाई कमेटी का बिजली के विलिंग से मुताल्लिक अहम फैसला। मुसाबकती प्रोसेस, शिरकत और दीगर अहम मामलात की मंजूरी दे दी गई। बिजली के ऑप्शन से मुताल्लिक तरीक़ाकार की भी मंजूरी। हुकूमत के वादों के मुताबिक अब नए बिजली के मुआहदे नहीं होंगे। अब हुकूमत बिजली की खरीदारी से निकल गई। फैसले के बाद 800 मेगावाट की मुसाबकती बोली का अमल शुरू हो जाएगा। मुल्क में जामे एनर्जी प्लानिंग के लिए पावर डिवीजन के इदारे PPMC में सेक्रेटेरिएट कायम किया जाएगा। अब सिर्फ एक जगह और एक इदारा मरबूत तरीके से प्लानिंग करेगा। पॉलिसी बनाने वाले इदारों में जामे मुआवनत मिलेगी। काबीना कमेटी के इजलास में पावर डिवीजन को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई। पावर डिवीजन को एनर्जी प्लानिंग में एनर्जी के तमाम जरियों बिलखुसूस ग्रीन एनर्जी के फरोग में मदद मिलेगी। फैसले के तहत सूबाई और वफाकी हुकूमतों के एनर्जी से मुताल्लिक ज़रूरियात, खपत और पैदावार के हवाले से मुश्तरका और मरबूत प्लानिंग की जाएगी। हमने जो स्ट्रक्चरिंग की थी वो इस तरह की थी कि हमें भी पैसे मिलें तो हमें 10 बिलियन कैश आएगा और हमारी जो इक्विटी होगी उसकी वैल्यू 45 अरब है, तो 55 बिलियन गवर्नमेंट को वैल्यू मिलेगी और 125 बिलियन जो कि पीआई की रिक्वायरमेंट है वो उसके अंदर जाएगा। तो टोटल 180 बिलियन की वैल्यूएशन है पीआई। कौमी एयरलाइन की निजकारी से हुकूमत को 10 नहीं 55 अरब रुपए मिलेंगे। सरमायाकारी में इजाफा होगा। कौमी एयरलाइन की निजकारी शफाफ अंदाज में हुई। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली का इजहार इत्मीनान। कहा निजकारी से कौमी एयरलाइन की अजमत रफ्ता रफ्ता बहाल होगी। हुकूमत का काम कारोबार चलाना नहीं। निजकारी के पूरे अमल में वजीर आजम की रहनुमाई हासिल रही। फील्ड मार्शल का सारे मामले में अहम किरदार रहा। PIA सालाना 40 लाख मुसाफिरों को सहूलत फराहम करती है। इसके लैंड रूट्स सबसे बड़ा असासा है। कौमी एयरलाइन के पास 30 से जायद जहाज हैं। PIA के 7 एयरक्राफ्ट 12 से 15 साल पुराने हैं। कौमी एयरलाइन के 18 जहाजों में से 12 लीज पर है। 2015 से 24 तक PIA ने 500 अरब रुपए का नुकसान किया। PIA को ना बेचते तो 2 साल बाद शायद ये उड़ान ही ना भर पाती। निजकारी में PIA की जायदादें शामिल नहीं। PIA के मजमूई तौर पर 191 अरब से जायद के असासाजात हैं। कौमी एयरलाइन के जिम्मे 182 अरब से जायद के वाजिबात हैं। निजकारी कमीशन बोर्ड ने PIA के लिए आरिफ हबीब कंसोर्शियम की बोली मंजूर करने की सिफारिश कर दी। PIA की निजकारी तारीखी लम्हा था। वज़ीर आज़म की हिदायत पर निजकारी का अमल TV पर दिखाया गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का कहना है कौम ने पहली बार निजकारी होती देखी। माजी में PTI रहनुमा के बयान पर यूरोप और अमरीका के रूट्स बंद हुए। हमारी हुकूमत में दोबारा ये रूट्स खुले। हुकूमत संभालते ही फैसला किया नुकसान वाले इदारों की निजकारी होगी। हम जब आए तो नारा लगाया था गवर्नमेंट का काम कारोबार करना नहीं। अब आवाम का टैक्स PIA के नुकसानात पूरे करने में नहीं लगेगा।
यूटिलिटी स्टोर्स, पास्को, PIA और फर्स्ट वुमेन बैंक की निजकारी का अमल मुकम्मल हो चुका। मुशीर वजीर खजाना खुर्रम शहजाद का सरकारी इदारों की निजकारी से मुतल्लिक एक्स पर पैगाम लिखा। यूटिलिटी स्टोर्स, पास्को और PIA कौमी खजाने पर बोझ थे। निजकारी से हुकूमत माली बोझ से निजात हासिल कर चुकी है। मुआशी नमू मुस्बत जरूर, लेकिन तेजी से बढ़ती आबादी की जरूरियात पूरी करने के लिए नाकाफी है। वजीर खजाना का एतराफ। मोहम्मद औरंगजेब का अमरीकी जरीदे USA टुडे को इंटरव्यू। कहा, निजकारी और टैरिफ इस्लाहात से आलमी मुसाबकत में इजाफा हुआ है। पॉलिसी तसलसल से मुल्की और आलमी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। पाकिस्तान बहरानों से निकलकर आलमी मईशत का हिस्सा बन रहा है। मुआशी इस्तेहकाम के बाद बरामदात पर मबनी तरक्की का आगाज हो गया। टैक्स, तवानाई, सरकारी इदारों में इस्लाहात जारी हैं। पाकिस्तान ने बरसों बाद प्राइमरी बजट और करंट अकाउंट सरप्लस हासिल कर लिया। महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। ज़र मुबादला ज़खायर $14.5 अरब से तजावुज कर गए। IT बरामदात $4 अरब से बढ़ गई। 5 साल में दुगना होने का इम्कान है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए ईस्ट एशिया मूवमेंट का तस्वुर पेश किया। इथियान कॉपर बेल्ट आलमी सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज बन गई। सोने की कीमत की ऊंची उड़ान। पहली बार फी तोला कीमत 4,72,862 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सोने की फी तोला कीमत में मजीद 2,000 रुपए इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 243 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,70,830 पॉइंट्स पर बंद। इंटर बैंक में डॉलर 1 पैसा सस्ता, 280 रुपए 20 पैसे पर फरोख्त। इस्लामाबाद में लॉन्ग वीकेंड। 25 दिसंबर की गजट छुट्टी के साथ 26 दिसंबर को भी आम तातील का ऐलान। इस्लामाबाद में 26 दिसंबर की छुट्टी गैर मुल्की आला सतह वफ़द की आमद के सिलसिले में दी गई। तमाम वफाकी इदारे खुले रहेंगे। यौम क़ायद और क्रिसमस तक़रीबात। इस्लामाबाद को इंतहाई खूबसूरती से सजा दिया गया। मुख्तलिफ मकामात पर क्रिसमस ट्रीज और रंग बिरंगे कुमकुमों की बहार आ गई। शाहराए दस्तूर पर लगे पौधों पर खूबसूरत लाइटिंग का एहतमाम। शरीना चौक और डी चौक रंग बिरंगी रोशनियों से मुनव्वर। मार्केट और बाजारों में भी रौनकें बढ़ गईं। इस्लामाबाद FIA हेडक्वार्टर्स में क्रिसमस डे की पुरवकार तकरीब। तुर्की में लीबिया के आर्मी चीफ के तबाह होने वाले तैयारे की तहकीकात। तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया। तुर्क वज़ीर दाखिला के मुताबिक तैयारे का वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी हासिल कर लिया गया। आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद का तैयारा अंकारा से रवाना होने के बाद अचानक से लापता हो गया था। जहाज हंगामी लैंडिंग की कोशिश के दौरान तबाह हुआ। तुर्क हुकाम के मुताबिक हादसा तकनीकी खराबी के बायस पेश आया। इब्तदाई तहकीकात में किसी भी किस्म की तखरीबकारी के शवाहिद सामने नहीं आए। अलमनाक वाक़े पर लीबिया में 3 रोज़ा कौमी शोक का ऐलान। तैयारा हादसे में लीबिया के आर्मी चीफ समेत 5 आला फौजी अफसरान जाँ बहक हो गए। मॉस्को के जनूबी इलाके में धमाका। 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार हलाक। सड़क पर मुश्तबा शख्स को रोकने के दौरान धमाका हुआ। मुश्तबा शख्स भी हलाक हो गया। रूसी हुकाम की तस्दीक।